Good morning, students. We are continuing class 12th, chapter 4 poverty. पिछले कुछ दिनों से वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे थे बिकॉज देयर वाज द वर्क फॉर क्लास 12th टेबुलेशन. जो आपके सीनियर्स 12th क्लास पास किए हैं तो उनके मार्क्स टेबुलेट करने के लिए द थिंग्स वर बिजी, सो दैट इज़ वाई क्लास उधर बीच नहीं ले पाए. तो पॉवर्टी में हमने 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स लगभग कवर किए हैं और पढ़ा है पॉवर्टी को कि किस तरह से चीज़ें रही है, पॉवर्टी क्या होती है, बेसिक क्राइटेरियाज हमने पढ़ा है. ठीक है, अभी यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे हु आर द पुअर. ये टॉपिक हमारा आज का रहेगा. यू वुड हैव नोटिस दैट इन all localities and neighborhoods, both in rural or urban areas, there are some of us who are poor and some who are rich. Read the story of Anu and Sudha and their examples to find out what are the differences between them. देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी आपको खुद ही पढ़नी है. अनु और सुधा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन करूँ. यू कैन रीड इट. मैं आपको बस डिफरेंस बताता हूँ इन दोनों को स्टोरीज़ का समरी क्या है. द स्टोरी व्हेन यू विल रीड यू विल फाउंड द डिफरेंस डैट इसमें से कोई एक फ्रेंड जो है कि काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी जो है कि उसके पास रिच मतलब कह सकते हैं कि रिच रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है. और दूसरे अगर फ्रेंड की बात करेंगे तो शी इज़ स्ट्रगलिंग विद मनी, शी इज़ स्ट्रगलिंग विद पॉवर्टी. ठीक है, शी इज़ स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ स्कैरसिटीज़. तो ये सारी प्रॉब्लम्स रही हैं. तो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. हम अगर ऐसे भी एग्जांपल लें कोई 2 पर्सन का, सपोज इन्हीं दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं, अनु एंड सुधा एज पर एनसीईआरटी. तो सपोज हम इस स्टोरी को ज़रा सा अपने से और ब्रॉड बना के और ये कल्पना करते हैं कि इसमें से कोई एक पर्सन ऐसा है जो रिच है, जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, शी इज़ हैविंग गुड एजुकेशन. ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, शी इज़ ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट इन ऑल द सिटीज़, शी इज़ वेरी क्लोज टू टेक्नोलॉजीज़, एजुकेशन. तो उस लड़की का जो विकास होगा, उसका जो आसपास का इन्वायरमेंट होगा, आसपास का वातावरण जो होगा डेवलपमेंट का, वो बड़ा अच्छा रहेगा. बट नेक्स्ट व्हाट इफ़ वी टॉक अबाउट another girl in this story who is having a very tough phase of her life, no proper education she is getting, medical facility तो है ही नहीं, and she is having the कच्चा houses to live, no proper sanitation, safe and clean drinking water and etc. And most important कि her father or her guardian are not earning much of the money that they may send her to a good school that she can have a proper education. So when you will see, when they will be in the age of 20s or 30s, so there will be a vast difference between the development of both the girls. One is having the education, one is having the proper medical facility, proper infrastructural facility. ठीक है, she will be more skilled person. Either if she is having the course of chartered accountant, she is having the course of MBA, doctorate, engineering, etc. So she is developing so much skill that she may multiplied her income and she is having a lot of opportunity to serve the country and earn a living and raise the standard of her life. Whereas if we talk about the second person who do not have the proper education facility since her childhood, so you can see that there will be the differences in the standard of living of both of them. The languages, you will see the linguistic differences. Linguistic means that there will be a difference of language. There will be the difference of attitude, what they present. So there will be a lot of difference. And most importantly again, she was a talent, no doubt she was a talent at her childhood, but without the proper guidance and education and some infrastructure facility, now she don't have any skill. So with the absence of a skill, she will only have to be dependent on the small works in a village, in agricultural work, or somehow somewhat
she may eager to earn some kind of living. So what you will see that there is a difference between both of them. तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है कंट्री में. नाउ भारत सरकार इसके विषय में यही सोचती है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास जो मैंने दूसरे लड़की का स्टोरी बताया, इस तरह के जो लोग एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, इनको हमें अपलिफ्ट करना है. वी हैव टू अपलिफ्ट बोथ, वी हैव टू अपलिफ्ट दिस काइंड ऑफ सेक्शंस इन आवर सोसाइटी. द रीज़न बिहाइंड, क्या रीज़न होगा कि हम इन लोगों को अपलिफ्ट करेंगे? क्योंकि हमें उन लोगों के बराबर इन्हें लाके खड़ा करना है जो दूसरी लड़की की मैंने स्टोरी बताया, वैसे लोगों के बराबर, वैसे लोगों के पैरेलल, वैसे लोगों के समानांतर इन लोगों को ले आना है ताकि इनकी भी इनकम जो है कि अच्छी खासी हो, ये भी स्किल डेवलप कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, एम्प्लॉयमेंट खुद पा सकें, एक बढ़िया एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट कर सके. तो इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट अपलिफ्ट करती है. तो यहाँ से ज़रा सा हम रिजर्वेशन के भी मुद्दे को कनेक्ट कर सकते हैं कि वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स रिजर्वेशन टू सम स्पेशल categories, the people who belongs to some special categories. So this is only the reason behind that reservation is, it is necessary. You can know that कि ऐसे लोगों को रिजर्वेशन देना मस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए. अदरवाइज यू विल सी दैट देयर मे बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. एक वर्ग तो डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएगा, लेकिन दूसरी ओर बाकी जो लोग हैं इनके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कमी होगी. आगे देखते हैं. पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, वुमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स, रैग पिकर्स, वेंडर्स, बेगर्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स इन अर्बन एरियाज़. अभी अर्बन एरियाज़ में बता रहा है कुछ एग्जाम्पल्स जो पुअर होते हैं. तो पुश कार्ट वेंडर, स्ट्रीट कॉबलर, ये पुश कार्ट वेंडर वही जो आपको देखते हैं रिक्शा वगैरह चलाते हैं, ठेला वगैरह चलाते हैं. स्ट्रीट कॉबलर्स मोची, वुमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स मतलब जो माली बेसिकली होते हैं, हम जो आम भाषा में जानते हैं, फूल वगैरह स्ट्रिंग करते हैं, तोड़ते हैं. ठीक है. वेंडर्स का मतलब जो रोड किनारे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं. ठीक है. बेगर्स मतलब आपको जानते हैं जो भिखारी होते हैं. तो ऐसे लोगों को बता रहा है कि अर्बन एरियाज़ में किस तरह के ऐसे लोग हैं जो वुल्नरेबल है और पुअर है. वुल्नरेबल इज़ ए इम्पॉर्टेंट वर्ड एंड वुल्नरेबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. इसको शायद मैंने डिस्कशन किया था, नहीं तो मैं फिर शॉर्ट में ज़रा डिस्कशन कर देता हूँ. डैट वुल्नरेबल ग्रुप्स और वुल्नरेबिलिटी का मतलब ये होता है, इस टर्म को ऐसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो पर्सन किसी न किसी एक कह सकते हैं कि हादसे का शिकार रहा हो, या कोई ना कोई ऐसी घटना उसके साथ घटित हो, कोई ना कोई एक फिज़िकल अपीयरेंस उसके साथ ऐसा हुआ हो जिस वजह से उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट ऐसा पड़ा हो कि वो अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकता है, वो इस तरह के है कि अब वो पुअर ही रहेगा. तो उस टर्म को हम वुल्नरेबिलिटी के सेंस में समझ सकते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे फिज़िकल हैंडीकैप पर्सन. अब जो फिज़िकल हैंडीकैप पर्सन है, इस पर कुछ ना कुछ एक ऐसा हादसा हुआ है जिस वजह से बड़ा समय लगेगा उसे अपने आप को डेवलप करने में. अगर इसके बाद भी उसके पास वो स्किल है, वो अपॉर्चुनिटी है, वो इन्वायरमेंट है उसके आसपास अच्छा, सपोर्टिव है उसके फैमिली के लोग, तो ही कैन डू गुड, नो डाउट. लेकिन अगर उसके पास ऐसी चीज़ें नहीं है और इसके बाद वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो जाए तो वो वर्क नहीं कर सकता है कहीं जाके. एंड ही कैन बी और ही विल बी एटलीस्ट इफ़ ही इज़ नॉट ऑफ अ बिग एंड रेपुटेड हाउस, सो ही विल बी ट्रीटेड एज अ वुल्नरेबल पर्सन. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं विडो वुमेन, विधवा महिलाएं. और इसमें कंडीशंस ये समझ सकते हैं कि ऐसी महिला जो अपने पति पे ही डिपेंडेंट हो. वाई वुमेन्स आर बीइंग टॉट टुडे टू बी सेल्फ डिपेंडेंट. क्यों आज वुमेन्स को, लड़कियों को ये सिखाया जा रहा है कि यू नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्योंकि अगर इस एग्जांपल में देखें, जनरली अगर आप कुछ साल पहले की बात देखते थे, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की बात देखें, यानी हमसे एक जनरेशन पहले की बात देखें, तो वुमेन्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं था पढ़ाई पे. और जिसका एक सबसे बड़ा डीमेरिट इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर शादी हो जाती है, उसके हस्बैंड को कुछ हो जाता है, इफ़ इज़ नॉट अलाइव इन दिस वर्ल्ड, सो शी वॉज एंड देयर चिल्ड्रन वॉज डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन. नाउ ही इज़
no more in this world. So what will happen that she do not have any skill, so she cannot earn money, or if she earns money, it will be only a meager income what she earns. It means that you can see that vulnerability or that woman will be counted in a vulnerable group. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम वल्नरेबिलिटी का समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, किसी बहुत ही बड़े एरिया में फाइमाइन आ जाती है, तो ये सारे ऐसे सिचुएशन है जो किसी एक एक्सटर्नल कॉज के कारण प्रभावित होने वाले कारक है, जिससे आप गरीबी के श्रेणी में प्रवेश कर सकते हैं। उसको हम वल्नरेबल ग्रुप कह सकते हैं और इस टर्म को हम वल्नरेबिलिटी के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अर्बन एरिया की बात थी। फिर रूरल एरियाज़ में बताया है जैसे जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, फार्मर है लेकिन जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, तो ऐसे फार्मर का मतलब ये है कि ये दूसरों की जगह काम करेंगे और दूसरों के लैंड पे अगर काम करेंगे तो बहुत ही कम तरह का पैसा ही नहीं मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्हें 1 से 2 मील का ही खाना मिलेगा। स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर ऑफ पुअरेस्ट हाउस होल्ड। इंपॉर्टेंट लाइन दिया है कि स्टारवेशन और हंगर ये दोनों एकदम की फीचर हैं पुअरेस्ट हाउस होल्ड के। जो गरीब से गरीब घर के लोग हैं, ये भुखमरी इनके लिए एक सबसे बड़ा कारण है और इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी होते हैं कि अपने आप को ये कैसे डेवलप कर सकें। मैल न्यूट्रिशन इज़ अलार्मिंग हाई अमंग द पुअर। व्हाट इज़ मैल न्यूट्रिशन? मैल न्यूट्रिशन का मतलब जितना पोषण, जितना न्यूट्रिशन किसी पर्सन को एक दिन में या एक समय में लेना चाहिए, अगर वो उससे कम लेते जाता है और कंसिस्टेंटली बहुत दिन तक कम लेते जाता है, तो दैट पर्सन विल बी इन द कैटेगरी ऑफ मैल न्यूट्रिटेड पर्सन। दीज आर सम ऑफ द रीजन्स। ओके, इसके बाद हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा।